हम पढ़ेंगे मीका 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। पिता, हम आपसे विनती करते हैं, आपके बिना हम इस वचन को नहीं समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि, ज्ञान, समझ सुगंधित बनाइए। हम आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ को प्राप्त करें और वैसा ही हमारा जीवन बदलता भी जाए, विश्वास का दर्जा ऊंचा हो जाए और हम परमेश्वर से और बहुत कुछ इस पृथ्वी के ऊपर काम कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। Chapter 1. Micah shews the wrath of God against Jacob for idolatry. He exhorts to mourning. First verse. The word of the Lord that came to Micah Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. Hear all ye people, hearken, O earth, and all that therein is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from his holy temple. For behold, the Lord cometh forth out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth, and the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem? Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard, and I will pour down the stones thereof unto the valley, and I will discover the foundations thereof, and all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burnt with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate, for she gathered it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked. I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls. For her wound is incurable, for it is come unto Judah. He is come unto the gate of my people, even to Jerusalem. Declare ye it not at Gath, weep ye not at all in the house of Ophrah. Roll thyself in the dust, pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked. The inhabitant of Zanaan came not forth in the morning of Bethesel. He shall receive of you his standing. For the inhabitant of Maroth waited carefully for good, but evil came down from the Lord unto the gate of Jerusalem. O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast. She is the beginning of the sin to the daughter of Zion. For the transgressions of Israel were found in thee. Therefore shalt thou give presents to Moresheth Gath. The houses of Achzib shall be a light to the kings of Israel. Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah. He shall come unto Adullam, the glory of Israel. Make thee bald and poll thee for thy delicate children. Enlarge thy baldness as the eagle, for they are gone into captivity from thee. Chapter 2. God's judgment against oppression, lamentation, reproof of injustice and idolatry, promise of restoring Jacob.
First verse say, woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. When the morning is light, they practice it, because it is in the power of their hand, and they covet fields and take them by violence, and houses and take them away. So they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Therefore, thus saith the Lord, behold, against this family do I devise any evil, from which ye shall not remove your necks, neither shall ye go haftily, for this time is evil. In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, we be utterly spoiled. He hath changed the portion of my people. How hath he removed it from me? Turning away, he had divided our fields. Therefore, thou shalt have none that shall cast a card by lot in the congregation of the Lord. Prophesy ye not, say they to them that prophesy, they shall not prophesy to them, that they shall not take shame. O thou that art named the house of Jacob, is the Spirit of the Lord straitened? Are these his doings? Do not my words do good to him that walketh uprightly? Even of late my people is risen up as an enemy. Ye pull off the robe with the garment from them that pass by securely, as men averse from war. The women of my people have ye cast out from their pleasant houses, from their children have ye taken away my glory forever. Arise, ye, and depart, for this is not your rest, because it is polluted, it shall destroy you, even with a sore destruction. If a man walking in the Spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of white wine and of strong drink, he shall even be the prophet of this people. I will surely assemble, O Jacob, all of thee. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold. They shall make great noise by reason of the multitude of men. The breaker is come up before them. They have broken up and have passed through the gate and are gone out by it, and their king shall pass before them, and the Lord on the hill on the head of them. Chapter 3. The prince's cruelty, falsehood of the prophets, their ill grounded security. First verse say, and I said, hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel, is it not for you to know judgment, who hate the good and love the evil, who pluck off their skin from off them, and their flesh from off their bones, who also eat the flesh of my people, and flay their skin from off them, and they break their bones, and chop them in pieces, as for the pot, and as a flesh within the cauldron. Then shall they cry unto the Lord, but he will not hear them. He will even hide his face from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings. Thus saith the Lord concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth and cry, peace, and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him. Therefore night shall be unto you, that ye shall not have a vision, and it shall be dark unto you, that ye shall not divine, and the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them. Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded, yea, they shall all
cover their lips, for there is no answer of God. But truly I am full of power by the Spirit of the Lord, and of judgment and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin. Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment and pervert all equity. They build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity. The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord and say, Is not the Lord among us? None evil can come upon us. Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest. थैंक यू जीसस। शापियांतु खम्बासेल रबहकसा। हिंदी में पढ़ेंगे हम मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 1, 2, 3 अध्याय पढ़ेंगे। रिबांतिका लरासियांदुरा 1 अध्याय पहले वचन से। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। समरिया और यरूशलेम के लिए विलाप। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तो उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे, क्योंकि देख यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे, और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है। वह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा, और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड्ड में लुढ़का दूंगा, और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएंगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीटकर हाय हाय करूंगा, मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूंगा। मैं गिदड़ों के समान चिल्लाऊंगा और शतुर्मुर्गों के समान रोऊंगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है, और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी। वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। शत्रु का यरूशलेम की ओर बढ़ना। 10 वचन से आगे। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रोवो। बेत अपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापेर की रहने वाली, नंगी होकर निर्लज्ज चली जा। सनान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुम से ले लिया जाएगा, क्योंकि सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकीश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इस्राएल के अपराध तुझी में पाए गए। इस कारण तू गत के मोरेशत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर में इस्राएल के राजा धोखा ही खाएंगे। वह मोरेशा की रहने वाली
रहने वालों में फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इस्राएल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवाकर सिर मुंडा वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। गरीबों पर अत्याचार करने वालों की भर्त्सना 2 अध्याय पहले वचन से। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो। ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के लिए हुए हैं, उसी के किए हुए हैं? क्या मेरे वचनों में उसका भला नहीं होता जो सीधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर उसे चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा को, स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाखमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इस्राएल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा, और बोस्रा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। इस्राएल के अगुवों की भर्त्सना 3 अध्याय पहले वचन से। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो। क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो। मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो, वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने की तैयार हो जाते हैं।
इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे और वे सब के सब अपने ओठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं, तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। थैंक यू जीसस। रिबान दिखम्बर खुशा। पिता परमेश्वर, आपके इन वचनों से हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 1 chapter 1 verse 11 verse, 2 Chronicles 32 chapter। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 1 वचन से 11 वचन और दूसरा इतिहास 32 अध्याय। हम अकेले में बैठकर पढ़ने का फैसला लिया है, तो एकांत में बैठकर जब हम पढ़ेंगे, पर्सनल टाइम में जब व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, हमारे अकेले के गुणों के बारे में वो सब कुछ हमें बताएगा और हमें सुधार कराएगा और हमें तेज बनाएगा। इसलिए हमने अकेले में पढ़ने का फैसला रखा है। आप अपनी तरह से जैसा पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं, कोई परवाह नहीं कैसे है। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ में शामिल होना है, तो निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा सीखना है और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ भी उठाना है इस बाइबल रीडिंग के दौरान। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पिता पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं कि हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों के आधार में, विश्वास में, सब कुछ में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू आबा फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू।